review what we have seen till now. क्या क्या देख चुके हैं रिफ्रैक्शन में. First thing, observation is when light travels from one medium to another, we saw that its speed changes, and it also bends. When we say bends, we mean it changes direction. Changes direction. Then we further wanted to know what about these speed changes. So we defined a quantity called refractive index, and for two mediums, say 2 and 1, which we call refractive index of 2 with respect to 1, and we defined it as the speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Then we also said that this is relative refractive index, and we will define something called absolute refractive index as refractive index of a medium by C by V medium. और इन दोनों की कहानी ये थी कि इन्हें बनाते समय the picture that we drew was whatever is on top is the incident medium, that is light is traveling at v1 in this medium, and when it enters the other medium its speed becomes v2. This is medium 2. When we did this, the conclusion or one of the conclusion that we drew was that if refractive index is greater than 1, if relative refractive index is greater than 1, that means object is traveling from which medium to which medium? Rarer to denser medium, so it will bend towards normal. When it is equal to 1, then there is no bending, and when it is less than 1, then it is traveling from denser to rarer medium, and hence it bends away from them. For this, how did we come to this conclusion? We did some experiments, we made some observations. What were those observations? The observations were that when light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards normal. When it moves from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, bends or deviates away from normal. When there is no change in density, then it goes undeviated. And then finally we saw that if there is normal incidence, then also there is no deviation. This picture, right? These were our observations. और कुछ था observation में? Rarer to denser, denser to rarer, no, normal. एक और था क्या? Did we make one more observation? देखो जरा observation में. I think these were the 3. एक और कुछ लिखा था में. Check करो, यही था. These 4. ठीक. Then we saw something called laws of refraction. Which said that the sine of the angle of incidence by the sine of the angle of refraction is equal to a constant. And we said that this constant was dependent on medium or pair of media, right? कौन सा medium ले रहे हो उसके ऊपर ही dependence. This was part A of the law. Part B said the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie on same plane.
Then to link this, we said that refractive index of 2 with respect to 1 is refractive index of 2 by refractive index of 1. I proved this, and that is equal to v1 by v2. यहाँ तक हम लोग कर चुके. This is what you should carry in your mind right now when we start today's class. इतना समझ में आना चाहिए. इसमें से अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो. I have seen again people sending me messages saying or giving me different reasons as to why light is bending. I told you have to wait for that. जब तक हम लोग उस कहानी तक नहीं पहुंचे तब तक तुम्हारी बातें सुन के कोई फायदा नहीं है. Whatever doubt you have, keep it to yourself. Once we discuss bending कैसे हो रहा है, then I'll take your doubts. ठीक, ना तो कोई दिक्कत. अब आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. Today we are going to see one पहला relation between refractive index of 2 1 and refractive index 1 2. Is there any relation? What does it mean? ये दोनों चीजों का मीनिंग क्या है और क्या कोई रिलेशन है, पहला ये चीज देखेंगे. दूसरा वी आर गोइंग टू सी कि इन ऑब्जर्वेशंस का कारण क्या है, राइट? कॉज, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, right? When I say explanation of the observation, I mean can I explain these observations based on the law? क्या ये law बता सकता है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, कैसा क्यों हो रहा है, right? Based on law, based on laws of refraction. Then we are going to do some numericals based on this. We may not go in the same order. हो सकता है पहले ये करें फिर न्यूमेरिकल करें फिर एक्सटेंशन करें. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कम टू द बेंडिंग ऑफ लाइट. क्यों रिफ्रैक्शन में बेंडिंग हो रहा है, कैन दिस एक्सप्लेन द बेंडिंग. तो सारा कहानी यही बताएगा. ध्यान देना, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, दैट इज द पावर ऑफ द लॉ. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस. ये छोटी सी बात यहाँ पे जो है ये सब कुछ बताएगा. ये जितने चीजें चल रही है सब कुछ ये बता सकता है, राइट? बेंड क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें वो बताएगा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सब क्लियर है? पक्का? बिठा दो. I'm going to keep this because we'll need this. तो सबसे पहले आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. और इसको कल मैंने प्रूव किया था. मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हम किसको बोलने वाले हैं, याद करो कल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 किसको बोलने वाले? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसका डेफिनेशन C बाई V2. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 का डेफिनेशन C बाई V1. फिर हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमने कहा N2 बाई N1 जो होगा इसके हिसाब से V1 बाई V2 हो जाएगा. और फिर रियलाइज किया कि V1 बाई V2 तो N2 बाई नहीं है, यही V1 बाई V2 है. So we came to the conclusion that this should also be equal to N2 by N1. That is the relative refractive index of 2 with respect to 1 is also numerically equal to the ratio of the absolute refractive index of medium 2 and absolute refractive index of medium 1. याद रखना फिजिकली ये दोनों बातें अलग अलग है. फिजिक्स के हिसाब से ये तीन अलग अलग चीजें हैं. मैथमेटिकली दे हैपन टू बी द सेम थिंग. फिजिकली इसका मतलब क्या है, फिजिक्स के हिसाब से इसका मतलब क्या है, ये कैसे ढूंढोगे? दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. हमने लाइट को यहां से आने दिया, यहाँ पे इसका स्पीड v1 था, हमने लाइट को इस मीडियम में जाने दिया, इस मीडियम में इसका स्पीड v2 था. जब हमने इस v1 और v2 का रेशियो लिया तो ये मिला. ये फिजिक्स का सेंस है, राइट? इसके कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले मीडियम की जगह पे वैक्यूम लिया, दूसरे मीडियम की जगह पे कोई मीडियम लिया, मीडियम 1 जिसको हम बोल रहे हैं, और यहां से लाइट को आने दिया.
जब यहां से लाइट आया तो लाइट का स्पीड था c, जब यहां से मुड़ा तो लाइट का स्पीड हो गया v1। तो हमने कहा ठीक है, इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विल बी इक्वल टू c बाई v1। इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज v1 बाई v2। पूरी अलग कहानी है। फिर हमने एक और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया जहां पे यहां पे था वैक्यूम और यहां था मीडियम 2, और हमने इसको लाइट को बेंड होने दिया, और हमने कहा ये जो n2 है ये c बाई v2 है। You can see these are three sets of different sets of experiments, three different sets of physical phenomena. But ये और ये can be related by that equation. ठीक, I hope that makes sense. Now, if you get that, then we are going to understand कि n21 और n12 में क्या रिलेशन है। ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोलूं n21 निकालो, तो कल मैंने तुम्हें सिखाया, तुम क्या करोगे? डायग्राम कैसा बनेगा n21 के लिए? यहां पे कौन होगा, ऊपर कौन होगा n21 के लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो जिस पे रिस्पेक्ट होगा मीडियम 1 वो ऊपर होगा, इंसिडेंट मीडियम होगा, और जहां पे बेंडिंग हुआ वो मीडियम 2 होगा। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी 1, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी 2। तो हमारे हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से n21 का वैल्यू v1 बाई v2। अगर मैं तुम्हें बोलूं फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो डायग्राम क्या बनता? बताओ, ऊपर कौन इंसिडेंट मीडियम, कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2? इंसिडेंट मीडियम, मीडियम 2, यहां पे वेलोसिटी v2 अंदर आ गया, यहां पे मीडियम 1, यहां पे वेलोसिटी v1, मान लो बेंड कर गया ऐसा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं हाँ, इस डायग्राम को देख के मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 बता, तो ऊपर कौन सा वेलोसिटी? ऊपर v2, नीचे अग्रीड। लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू। ध्यान से देखो, तो ये राइट हैंड साइड 1 हो गया, तो n21 मल्टीप्लाइड बाई n12 इज इक्वल टू 1, दैट इज n21 is 1 by n12, another relation. So now I can also write n21 as, this is also equal to 1 by n12. Refractive index of 2 with respect to 1 is equal to refractive index of 1 with respect to 2 का inverse. हो गया? डन? ठीक। One more small little thing and then we are going to do some numericals. हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as velocity of light in vacuum divided by velocity of light in the medium. कल हमने ये पढ़ा था।
right? This is absolute refractive index. Now I told you that velocity of light in vacuum is the maximum possible velocity, यानी कि जो velocity of medium होगा ये इससे छोटा ही होगा. तो अगर मान लो डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होने वाला है, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होने वाला है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बारे में क्या बोल सकता हूँ? इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, लिख लो इस बात को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. I'm going to write some examples. Refractive index of air 1.0003. Refractive index of water is 1.333, which is also equal to 4/3. This is a more convenient number to use. Refractive index of glass is approximately 1.5, which is equal to 3/2. These are numbers that you'll have to remember. Then refractive index of diamond is 2.8, 2.4, 2.42. This is one of the maximum refractive indexes, highest refractive index. This also helps us in understanding as to why diamonds sparkle. डायमंड में जो स्पार्कलिंग प्रॉपर्टी होता है उसके पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. Now, one last thing. Speed of a wave speed of light कर दो. Speed of light is linked to or related to something called wavelength of light and multiplied by frequency of light. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं, C is equal to lambda into nu or lambda into f. This is a Greek letter nu, where C is the speed of light, lambda is the wavelength of light, and nu is the frequency of light. Class 9 पे if we have done waves, तो wave में देखा होगा velocity of a wave is equal to wavelength by time period, होता था wavelength by time period, और 1 by time period frequency होता था. This is a formula that you should have seen in class 9, at least introductory. Now why does this come into picture here? सुनना ध्यान से. When light, लिख लो इस बात को, when light goes from one medium to another, when light goes from one medium to another, then first its speed changes, second its wavelength changes, third
its frequency remains constant. Its frequency remains constant. इससे क्या होगा, सुनना ध्यान से। मान लो एक मीडियम है, मीडियम 1, एक मीडियम है, मीडियम 2। यहां से लाइट आया, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v1, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v2। मान लो इस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज λ1, इस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज λ2। और क्योंकि मैं बोला गया फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो f है। तो अभी अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 को लिख सकते हैं v1/v2। बट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से देखो, यही तो वेलोसिटी था। वेलोसिटी का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो v1 के बदले लिख सकते हैं λ1 इंटू फ्रीक्वेंसी 1, और इसको लिख सकते हैं λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी 2। बट फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो कट जाएगा। इसका मतलब n21 इज ऑल्सो इक्वल टू λ1/λ2। That is, the refractive index is also equal to the ratio of the wavelengths in the two medium. ठीक, प्रेटी सिंपल से मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी यूज किया। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा तो कट गया, तो λ1/λ2 बच गया। नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। नाउ यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, अगर मैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, c/v मीडियम, या फिर इसके हिसाब से λ/λm। ये लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इन्हीं पे डिपेंडेंसी है, तो लिख लो पहला, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये वाली कहानी, यही तो ऑप्टिकल डेंसिटी आता है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। And third, it depends on the wavelength of the light on the medium. It depends on the wavelength of the light in the medium. ब्रैकेट में लिख लो, that is color of light. That is color of light. That is color of light.
right? This will come into picture when we do dispersion. हमारे इसमें dispersion भी है. कलरफुल वर्ल्ड है ना चैप्टर. कलरफुल वर्ल्ड में रेनबो पढ़ोगे तो डिस्पर्शन आएगा, वहां पे ये चीज काम आने वाला है. चल आ जाओ फटाफट थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि वी गेट सम सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. The refractive index of glass with respect to air is 1.5. The refractive index of glass with respect to air is 1.5. What is the refractive index of air with respect to glass? क्या किया जाए, क्या रिलेशन यूज किया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास शुड बी इक्वल टू, that is refractive index of air with respect to glass should be equal to 1 by refractive index of glass with respect to air. That is 1 by glass with respect to air दिया हुआ 1.5. So refractive index of air with respect to glass will be equal to 1 by 5 को लिख सकते हैं 3 by 2. तो ये हो गया 2 by 3. सर अगर स्पीड ऑफ ग्लास मालूम है तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं. नहीं दिया हुआ डेटा तो फिर क्यों यूज करेंगे, यस सर. तो फिर सीखे क्या अगर वही यूज करना चाहिए. कर पाए सब लोग. अच्छा ये आंसर देखो, लुक एट दिस आंसर. कैन यू टेल मी बाय लुकिंग एट दिस आंसर व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू गेट. पहले तो पिक्चर बताओ, ये पिक्चर कैसा है. मान लो मैंने एक ऐसा रे बनाया, बताओ यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौन. ये रे ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौन. ऊपर ग्लास, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास बोला है, तो विथ रेस्पेक्ट जिसका भी है ग्लास वो ऊपर रहेगा, रेस्पेक्ट वाला हमेशा ऊपर रहेगा. अरे तभी तो रेस्पेक्ट है ना जी. नीचे एयर, बोलो रिफ्रैक्टेड रे कैसा बनाओ, क्या वो इंफॉर्मेशन मुझे वहां से मिलता है. रिफ्रैक्टेड रे कैसा बनाओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल, व्हाई, बिकॉज द वैल्यू इज लेस देन लेस. क्लियर है. सो बाय लुकिंग एट दिस आई कैन टेल कि अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसा दिखेगा. ठीक. नेक्स्ट. If the refractive index of water for light going from air to water, if the refractive index of water for light going from air to water is 1.33, is 1.33, what will be the refractive index of air, what will be the refractive index of air
for light going from water to air, from light going for water to air. डन। क्या सेम क्वेश्चन ये? अरे पिछले वाला सवाल ही है। इस बार क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका दिया हुआ है? वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया हुआ है? 1.33। और सवाल पूछा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू, तो देख सकते हो ये 4/3 है, तो ये 3/4 हो जाएगा, दैट इज 0.7। कर पाए सब लोग? अरे हाँ ना। नेक्स्ट, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, find the refractive index of a material if the angle of incidence of ray of light, find the refractive index of a material if the angle of incidence of ray of light is 45 degree and the angle of refraction of the material, sorry, angle of refraction in the material is 30 degree. Find the refractive index of a material if the angle of incidence of the ray of light is 45 degree and the angle of refraction in the material is 30 degree. पहले डायग्राम बनाओगे ढंग से। बोल, हमें पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, क्या लगाना पड़ेगा? एनीथिंग, नथिंग। ठीक, तो ये डायग्राम बना के और पेज छोड़ दो, यहाँ पे हम वापस जाएंगे इसमें। और किसके पास आइडिया, बाय द वे? नहीं, बढ़िया आइडिया।
सर वो साइन है। Sine by Sanar is what? Where have we ever talked about that? अच्छा, खुद का ज्ञान, अच्छी बात है. So she knows something that she is not telling us. Next, जगह छोड़ देना, आएंगे वापस. The speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And in water is 2.26, and in water is 2.26 into 10 to the power 8 meter per second. Find the refractive index of water. एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है. हो गया, बोलो क्या करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किस निकालेंगे. क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल, ये एब्सोल्यूट निकालने बोला है कि रिलेटिव निकालने बोल रहा है. ये एब्सोल्यूट बोल रहा है और हमें दिया हुआ है एयर का. इसका मतलब हमें मान लेने बोला है कि एयर और वैक्यूम का सेम है, जो कि दिख रहा है, वैल्यू में दिख भी रहा है. तो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन व्हाट. So 3 into 10 to the power 8 meter per second by 2.26 into 10 to the power 8 meter per second. So जो भी आता है 3 by 300 by 226. ठीक, and then you can simplify if required. एक और लिखो. The refractive index of glass with respect to air is 3 by 2. The refractive index of glass with respect to air is 3 by 2, while the refractive index of air with respect to water, while the refractive index of air with respect to water is 3 by 4, is 3 by 4. Find the refractive index of, find the refractive index of glass with respect to water. Find the refractive index of glass with respect to water. अच्छे से करो इसको.
Refractive index of glass with respect to air is 3/2. Refractive index of air with respect to water is 3/4. Find the refractive index of glass with respect to water. मैं क्वेश्चन क्या दूँ? सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है. कैसे करें? This is where that diagram becomes very, very important. If you don't get that diagram, then you won't be able to solve this type of problems. बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब डायग्राम कैसा है? जल्दी बताओ, कौन ऊपर कौन नीचे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर में कौन ऊपर? एयर ऊपर, ग्लास नीचे. तो बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर को क्या लिख दूं? ऊपर किसका वेलोसिटी, नीचे किसका वेलोसिटी? दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ व्हाट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ व्हाट. जल्दी बताओ. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, यहां पे ऊपर एयर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा दिया हुआ है एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये लिखूं, तो ऑब्वियसली डायग्राम में कौन ऊपर कौन नीचे? एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोला है, इसका मतलब वाटर ऊपर और एयर नीचे. तो बोलो किसका वेलोसिटी ऊपर, किसका वेलोसिटी नीचे? ऊपर वेलोसिटी ऑफ वाटर, नीचे वेलोसिटी ऑफ एयर. क्या मैं अच्छा, मुझे चाहिए क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर चाहिए. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे कौन ऊपर कौन नीचे? वेलोसिटी किसका ऊपर, किसका वेलोसिटी नीचे चाहिए मुझे? वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर और ग्लास नीचे, मुझे ये चाहिए. अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास वी ए, इसको एक लिख देता हूं, वी ए बाई वी जी है, मेरे पास वी डब्ल्यू बाई वी ए है. बट मुझे चाहिए वी डब्ल्यू बाई वी जी, मुझे चाहिए वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी जी. वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी जी चाहिए. सोचो मैं इन दोनों के साथ क्या करूं तो मुझे राइट हैंड साइड में वी डब्ल्यू बाई वी जी मिल जाए. इन दोनों के साथ क्या करूं कि मुझे राइट हैंड साइड में वी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई वी जी मिल जाए. तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग द टू, एन जी ए मल्टीप्लाइड बाई एन ए डब्ल्यू विल गिव मी यहाँ पे वी ए बाई वी जी मल्टीप्लाइड बाई वी डब्ल्यू बाई वी ए. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है मुझे यहाँ पे वी डब्ल्यू बाई वी जी चाहिए, तो ये कट गया. सो दिस इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी जी. ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है, एन जी ए 3/2 दिया हुआ है, एन ए डब्ल्यू ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है, यानी कि वी डब्ल्यू बाई वी जी का वैल्यू आया यहां से 339, ये 8, और ये है एन जी डब्ल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी के साथ जोड़ के सवाल बनाया गया. कर पाए? कितने लोग नहीं कर पाए थे? सही बताओ तो एक और दूंगा. नहीं कर पाए थे? चलो अब सुना ध्यान से. बिफोर आई गिव यू अनदर वन, कैन यू टेल मी, if I had asked you instead of this question, if I had asked you velocity of, ये नहीं सवाल पूछ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा होता तो क्या करते? सोचो इन दोनों के साथ क्या करते तो ये मिलता. पहले बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास में ऊपर कौन? वी जी, नीचे वी डब्ल्यू. सोचो इन दोनों के साथ क्या करते तो मुझे वी जी बाई वी डब्ल्यू मिलता, वी जी बाई वी डब्ल्यू मिलता. मुझे वी जी ऊपर चाहिए, वी डब्ल्यू नीचे चाहिए. हाँ, वी जी बाई वी डब्ल्यू, इनमें से कैसे क्या करूं कि इनमें वी जी बाई वी डब्ल्यू मिले?
मुझे वीजी को ऊपर ले जाना है, तो सोचो इसके साथ क्या करूं, वीजी, तभी तो वीजी बाई वीए मिलेगा। सोचो अगर ये वीए बाई वीजी है, मुझे बताओ वीजी बाई वीए कौन है, वीजी बाई वीए कौन रहेगा? अगर ये एनजीए है तो वीजीए कौन, वीजी बाई वीए कौन होगा? एन ए जी। और तो वीजी ऊपर आ गया, और वी डब्ल्यू नीचे चाहिए, वो तो मेरे पास है यहाँ पे, वी डब्ल्यू बाई वी, दिस इज एन ए डब्ल्यू। सोचो अब इन दोनों के साथ क्या करूं कि मुझे वीजी बाई वी डब्ल्यू मिल जाए, डिवाइड, तो डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया एन ए जी बाई एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू वीजी बाई वी डब्ल्यू। एन ए जी, मुझे एन जी दिया हुआ है, तो एन ए जी कहां से लाऊं? उसका इनवर्स, तो यहाँ पे 3/2 की जगह पे 2/3, और एन ए डब्ल्यू तो 3/4 ही होगा, 3/4 इज इक्वल टू वी जी डब्ल्यू। ये 3 कट जाएगा, नहीं 3 नहीं कटेगा, सॉरी, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 8/9। पिछली बार क्या आया था जी? 9/8, तो क्या सही है? क्योंकि अगर वी जी डब्ल्यू, अगर एन जी डब्ल्यू 9/8 था, तो एन डब्ल्यू जी को 8/9 होना भी चाहिए। तो या तो यहां पे निकाल के उसी को उल्टा कर लो, या फिर ये कहानी करो। ठीक, क्लियर है? एक और दो ऐसा सवाल, लिखो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ the refractive index of A with नहीं, the refractive index of M with respect to air is 5/3. Refractive index of air with respect to V, maybe where P is 2/5. Then find the refractive index of P with respect to M and the refractive index of M with respect to P. राइट, ये एम और पी कुछ भी हो सकता है, जैसे पिछली बार ग्लास और वाटर था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमने प्लेस होल्डर्स ले लिए। Yes. अब ध्यान से सुनना, कुछ बता रहा हूं। ये कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम ए, सुना ना सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम ए मल्टीप्लाइड बाई, मैं यहाँ पे लिखना ला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एपी। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम ए इज 5/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2/5। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इसको उठाया, यहाँ लिखा, इसको उठाया, यहाँ लिखा, ऐसा क्यों लिखा है समझ रहे हैं? और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये मैं ऐसा लिख पाऊं जहां पे इधर जो मीडियम है, इधर भी वही मीडियम है, इसके राइट साइड का मीडियम और इसके लेफ्ट साइड का मीडियम, तो मन में मान के चलो कि ये मीडियम कट गए, तो बच गया कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये दोनों कट गया, एम विथ रिस्पेक्ट टू पी, यही है इसका आंसर। ये क्या हो रहा है सर? ऐसा थोड़े चलता है। शॉर्टकट सिखा रहा हूं, वो लंबा लंबा कहानी ठीक है, बोर्ड के लिए वो करेगा, बट टेस्ट भी तो कर लो कि कैसे आसानी से कर लेंगे। मैं कह रहा हूं इन दोनों को ऐसे अरेंज करो ताकि इसके राइट साइड में जो मीडियम हो और इसके लेफ्ट साइड में जो मीडियम हो दोनों सेम हो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका पहला वाला मीडियम, इसका दूसरा वाला मीडियम है।
एक और ट्राई करते आ जाओ। मान लो मैं बोला गया, सुना ध्यान से, मान लो हमें बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 3 is 4/3 and refractive index of E with respect to A is equal to 5/3. Find refractive index of B with respect to E. तो सुनना मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट। सोचो मुझे यहां पे पहले चाहिए B, फिर चाहिए E। तो ध्यान से समझो कि मैं NB, मुझे BA और EA दिया हुआ है, तो NB के बाद क्या लिखूंगा, A, और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, NAE। मुझे ये जो भी देगा वो मुझे पता है कि NB ही होगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अगर ये और ये काट दो तो ये NB बच जाएगा, ये नहीं बच जाएगा, तो मुझे ये जो भी देगा वो NB देगा। अब सिर्फ मेरा काम ये है कि किस तरह से मैं इसको निकालू। NBA दिया हुआ 4/3 लिख लिया वैसा का वैसा, NEA दिया हुआ 5/3, तो NAE 3/5। कहानी खत्म। यू कैन डू द नॉर्मल पार्ट। नॉर्मल पार्ट में क्या लिखते हैं, चलो उसको भी करके देख लेते हैं। NBA को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। बोलो क्या लिखते हैं, VA/VB। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू A का मतलब क्या हुआ, V, वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू A, VA/V, ये दिया हुआ 5/3। हमें बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू E निकालो। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू E। इसका मतलब VE/VB चाहिए। अब सोचो यहां से VE/VB कैसे लाए, तो VE/VB के लिए इसको पहले उल्टा करना पड़ता, इसको उल्टा करना पड़ता और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसको उल्टा करेंगे तो VE/V आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो V कट जाएगा। तो इसको उल्टा करने के लिए क्या लिख दूं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो लिख सकता हूं VA/V मल्टीप्लाइड बाई ये। इसको उल्टा करूंगा तो VE/VA और मल्टीप्लाइड बाई ऊपर जो भी था VA/VB, ये दोनों कट जाएंगे तो V/VB बच जाएगा। बट V/VA का वैल्यू ये 5/3 है, तो ये 3/5 और VA/VB दिया 4/3, तो आया 4/, वो सब करके भी वही आएगा जो यहाँ आएगा। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, यू शुड नो दिस, क्योंकि तुम्हें लिखना पड़ेगा ये। बट आई एम टेलिंग यू देयर इज अ easier way to handle the problem. जैसे मान लो, सुना ध्यान से, अगर मुझे बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम E with respect to F is 2/3, refractive index of a medium F with respect to G is 5/7, refractive index of a medium G with respect to H is 8/5, and refractive index of H with respect to I is 2/3. Then find refractive index of E with respect to I. तो अब ध्यान से देखो, तो अगर तुम वो करने गए जो कर रहे थे, you will take some time. But if you realize that NEI can be written as NEF multiplied by NFG, सोचो ये मुझे कौन देगा, ये मुझे क्या देगा, NEG देगा। मल्टीप्लाई कर दो NGH, तो ये मुझे क्या देगा, अब GG कट जाएगा तो NEH देगा। मल्टीप्लाई कर दो NHI, ये मुझे क्या देगा, लो खत्म। यह कटेगा, यह कटेगा, यह कटेगा, तो बचेगा कौन, यह कटेगा, तो बचेगा कौन,
आई, एज लॉन्ग एज ऐसा हो रहा है, एडजेसेंट वाले कट रहे हैं, तो भी काम कर। अब यहाँ पे एन एफ जी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी एन जी एफ लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? इट्स अ शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन। कंफर्टेबल हो कि एक और करा दो, तुम जितना बोलोगे उतना कर दो, क्या 2 नंबर और देखो, फिर बोलो करने, एक और दे दो, एक और। मजा आ रहा है? चलो लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ विथ रिस्पेक्ट टू, क्या दे दो, सम मीडियम, मान लो ई इज 2/5 and refractive index of air with respect to a medium F is 2/7, then find the refractive index of F with respect to E. तो बनाओ। हो गया? बोलो, एन एफ ई को कैसे लिख सकता हूं? मेरे पास ए है कॉमन, तो क्या लिख इसको, एन एफ ए मल्टीप्लाइड बाई एन ए ई। समझ में आ रहा है? तभी तो ये दोनों कटेंगे। अब एन एफ ए यहां से ढूंढो, एन ए एफ 2/7 है तो एन एफ ए 7/2, एन ए ई 2/5 दिया हुआ है, 2/5 होगा। यू कैन डू योर ओल्ड स्टफ एंड चेक, कर लो एक बार। वो वाला तरीका भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में लिखना पड़ेगा, पेज भरना पड़ेगा, अदरवाइज कहां से होगा। डू इट बाय योर ओल्ड वे एंड सी। दिस इज इक्वल टू वी बाई वी ए, दिस इज इक्वल टू वी एफ बाई वी ए, वी नीड वी बाई वी एफ। तो वी बाई वी एफ के लिए इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दो, 2/5 बाई 2/7 कितना आता है? मजा आया? बता दो। तो ये था सम प्रैक्टिस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और लास्ट कर लेते हैं, वन लास्ट। मान लो मैं बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, refractive index of a medium with respect to refractive index of a medium with respect to air is 7/5. Refractive index of a medium with respect to air is 7/5. Find the velocity of light in the medium. Find the velocity of light in the medium.
डन। बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब कौन है? ऊपर कौन? वेलोसिटी किसका? एयर का, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मीडियम का। हमें मीडियम का वेलोसिटी ढूंढना है, तो वो हो जाएगा वी ए डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू। मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वीएम को इधर ले गए और इसको इधर लेके आ गए। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 7/5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कुछ गड़बड़ लिखा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर 7/5 लिखा है मैंने। हाँ ठीक तो है। तो हो जाएगा 15/7 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इफ आई सॉल्व दिस इट विल बी 2 point something, right? 2.134 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, रफली अप्रॉक्सीमेट। कर पाए? है जी, पक्का? एक और लिखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। A new material is discovered whose refractive index with respect to glass is 7/4. So 5/4. 5/4. A new material is found whose refractive index with respect to glass is 5/4. Find the speed of light in the medium. Find the speed of light in the medium considering that the speed of light in glass, considering the speed of light in vacuum, considering that speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second and refractive index of glass is 1.5, and refractive index of glass is 1.5। यानी कि तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ग्लास यूज नहीं करना है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास यूज नहीं करना है। जो डेटा दिया हुआ सिर्फ वही डेटा यूज करोगे। अच्छा इसको चेंज कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कर देते हैं 1.8, ताकि तुम्हें अगर पता भी हो तो गड़बड़ हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज 1.8। ये नया टाइप का ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है। दिस इज माय ग्लास। By the way, since the schools are running morning timetable, this week we are going to continue with the existing timetable। जो हमारा चल रहा था वही चलेगा। जो मैं थर्सडे को बोल रहा था, थर्सडे से नया टाइम टेबल आने वाला है, वो अब तब आएगा जब तुम्हारा स्कूल वापस नॉर्मल हो जाएगा।
होपफुली बाय मंडे। तो कल का टाइम तुम्हारा क्या रहेगा? 6 to 7। चलो जी बोलो कैसे करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी? फटाफट बताओ। वेलोसिटी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसका रेस्पेक्ट वो वेलोसिटी ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल नीचे। इसका मतलब अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ग्लास होता तो काम हो जाता। अरे है ना जी, ये दिया हुआ है, ये चाहिए, ये मिल जाए तो काम बन जाए। कहां से लाइए? उसके लिए यहां पे आते हैं। हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को लिखे कैसे? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू किसका रेस्पेक्ट है यहाँ पे? किसको रेस्पेक्ट मिला है यहाँ पे? वैक्यूम को। तो ऊपर किसका स्पीड होगा? वैक्यूम का, डिवाइडेड बाई ग्लास। तो यहां से मैं वीजी को क्या लिख सकता हूं? वीजी इज इक्वल टू सी बाई एनजी। सी दिया हुआ है, एनजी दिया हुआ है, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू वीजी के बदले सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई वीएम। नाउ यू रीअरेंज दिस। So Vm is equal to C by refractive index of M with respect to G into refractive index in G। तो क्या मिल गया? C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mg दिया हुआ है 5/4 और वो दिया हुआ था 1.8। 1.8 को क्या लिख सकते हैं जी? 9 बाई, अरे 9/5 लिख सकते हैं ना? वाह, नंबर भी अच्छा आ गया फिर। तो 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, ये 4 ऊपर चला गया, तो 4/3। अरे बाबा कोई बात नहीं, ये नया टाइप का मटेरियल था, कुछ भी कर सकता है। 4/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1.33 इंटू 10⁸ मीटर पर। That is the speed of the light in this material. Right? So you should be able to see this कि मुझे अब किसी भी मीडियम से स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए, मुझे एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे सामने, मुझे ये पता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंट से आ सकता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक्सपेरिमेंट से आ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कल समझेंगे जब हम लोग स्नेल्स लॉ को और अच्छी तरह समझें। सो वी कैन फाइंड आउट दिस बाय दिस विल इन फैक्ट ऑलरेडी बी नोन। सिर्फ नया मटेरियल आया है, उस नए मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। जैसे तुमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया तो तुम्हें उसका क्या मिल जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। चलो, आई विल सी यू टुमारो।